chapter 9 only, and we're going to cover specific skills topic, alright, which is available on page number 182, alright, NCERT book. So you reach to 182 page. There we are having specific skills. So now what is specific skills all about? अब जितना चैप्टर इसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो लेफ्ट है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्किल्स, डिफरेंट टाइप्स. सो लास्ट डे हम एक इसका फ्लो चार्ट भी बना लेंगे सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिमेंबर और टू लर्न. राइट, पहले तो मीनिंग क्या है वही स्पेसिफिक स्किल्स का. दीज स्किल्स आर कोर. कोर समझते हैं, बेस टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स need to be trained. They need training in various techniques of therapeutic interventions and then psychological assessment and counseling. Similarly, organizational psychologists, पहले क्लिनिक वालों की बता दिया, क्लिनिकल साइकोलॉजी वालों को क्या क्या चाहिए, थेरेपेटिक इंटरवेंशन आना चाहिए, so they'll get training on that. साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स भी आनी चाहिए, मतलब उनको रिसर्च करना, असेस करना सब आना चाहिए. Organizational psychologists working in the organization's context need to have skills in assessment because they have to go in the organization, they have to assess everything, all the situations, people around them, facilitation and consultation because they are going to consult the employer as well as the employee. Behavioral skills भी check करने आने चाहिए. ओके, क्यों? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, टीम बिहेवियर, तो ये सब उनको पता होना चाहिए. सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बिसाइड्स रिसर्च एंड स्किल्स, उसके अलावा उन्हें ये सब स्किल्स होने चाहिए. दो स्पेसिफिक स्किल्स आर, ये हो गया हमारा मीनिंग. स्पेसिफिक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड फॉर अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल फंक्शनिंग. Nonetheless, all skill sets do overlap quite a bit. मतलब इनमें से जो होंगे वो पीछे वालों के साथ थोड़े बहुत सिमिलर भी हो सकते हैं. They are not exclusive to an area. मतलब जो क्लिनिकल में है वो हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल में भी चाहिए हो. So it's not that उसमें exclusively यही 2-3 चाहिए और इसमें exclusively ये 2-3 चाहिए. So it means there can be overlapping. Means there are basic things जैसे assessment skills, वो तो दोनों भी होने चाहिए because they have to assess the whole thing. Then वो कौन से हैं? तो कहते हैं उनको हमने 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. इफ दिस क्वेश्चन कम्स, सो ओनली any one category will be tested because the categories further are categorized into many components. Communication skills is the first one. ये दोनों को चाहिए, right? इसमें क्या क्या आता है? Communication, communicate करना प्लस सुनना, speaking, listening and body language is very important. तो हम इसको पढ़ेंगे. And then psychological testing skills आने चाहिए, interview skills, counseling skills. Then counseling skills are further categorized into 3: empathy, positive regard and authenticity. Let's begin with communication skills, alright? The skills we are going to discuss may appear abstract. You will however understand them better when you engage in exercises relating to them. Let us understand the basic of communication process and see what role it plays in fostering relationship and personal effectiveness. Learning how to be an effective communicator is not just an academic exercise. Underline कीजिए, ये सिर्फ academic exercise नहीं है. It's one of the most important skill you will need to succeed in life. In fact, I would say communication skills are important, vital, essential for all the streams wherever you go. You be a doctor, you need to be able to communicate with your patients. Be it engineer, you should be smart enough in your communication so that you can convince the other person to get a project, either mechanical or जो भी आप engineering कर रहे हैं. Teacher के लिए communication skills, yes, must, because she has to explain the content. और अगर अच्छे से बात ही नहीं करनी आती तो समझाएंगे कैसे? So be it whatever stream, communication becomes essential in all the streams, not only in psychology, alright? It's one of the most important skills you need to have if you want to succeed in your life. Your success in this class may well depend on your ability to communicate. For example, to do well, you should be able to ask and answer questions, summarize opinions,
distinguish facts from opinions and interact fruitfully with your peers, with your teachers. बच्चों में भी होना चाहिए, आप अपनी बात कैसे रखेंगे अपनी टीचर्स के सामने. For this you will also need listening skills. एक अच्छा कम्युनिकेटर तभी बन सकता है जब उसमें सुनने की भी कैपेसिटी अच्छी हो. जब हम कहते हैं सुनना, इट्स नॉट जस्ट क्लास में बैठ के इधर से सुना इधर से, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए. वहां पर भी आएंगे हम. ओके, लिसनिंग स्किल्स इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड, क्योंकि अगर मैं अच्छा सुनूंगी ही नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे. इफ आई एम नॉट ग्रैबिंग द इंफॉर्मेशन राइट, how will I be able to communicate right? So I should be a good listener as well. In order to comprehend the information presented in the class and other, say verbally or non-verbally, you will be required to have good presentation skills. All right? Now, to give briefing or to present reports on projects that are part of classroom assignments. So आप अपने ऊपर लेके देखें as a student, अगर आपको कोई एक project दे दें कि आपको एक PowerPoint presentation बनानी है इस particular topic पे, and you have to come and present and explain your content or point to the other students. Will it be possible if you are not a good communicator? Of course not, right? Okay, so it can be said that communication is a conscious or unconscious. ये कॉन्शियसली भी हो सकता है, समटाइम्स इट इज अनकॉन्शियस. कैसे? फॉर एग्जाम्पल घर में गेस्ट आए हैं और छोटे बच्चे होते हैं ना, अब टेबल पे आपने कुछ सर्व किया तो छोटे बच्चे हो सकता है दे गो एंड जस्ट पिक इट अप, व्हिच वी थिंक वी नो दैट इट डजंट लुक नाइस, इट्स अगेंस्ट मैनर्स. बट एक छोटे से बच्चे को मैनर्स के बारे में नहीं पता, बट वो उसकी कम्युनिकेशन अपनी मदर के साथ कैसे होती है? आइज के साथ. कॉन्शियस भी हो सकती है, अनकॉन्शियस भी हो सकती है. कैसे हो सकता है? कॉन्शियसली as a mother I told the child not to come forward, okay, wait for the guests to take first. Unconscious भी हो सकती है, by chance the child looked at me and मैंने उसको ऐसा एक्सप्रेशन दिया. तो कभी कभी effortless भी हो सकती है और effort के साथ भी हो सकती है. all right, so it's conscious or unconscious, intentional और unintentional. जैसे मैंने बोला intentionally मैंने उसको रोका, unintentional मतलब मैंने देखा इस तरह से, मेरा कोई पर्पस नहीं था या बच्चे ने मुझे देखा कि मैं लूं कि नहीं लूं. Process in which feelings and ideas are expressed as verbal and non-verbal messages. कभी कभी मुंह से बोला जाता है, कभी कभी gestures से भी समझाया जाता है. That are sent, received and comprehend. Okay, so ये मीनिंग है, इसे अंडरलाइन कीजिए and you are supposed to write it down in your notes. The characteristics of communication are outlined in 9.2. You have to refer that and you have to learn also. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें पहले सर्कल कर लीजिए. फर्स्ट में इट इज डायनामिक. व्हेन आई से डायनामिक मींस एवर चेंजिंग. कम्युनिकेशन इज एवर चेंजिंग. क्या ये स्टैटिक रहती है एकदम सीधा एक ही बात? नो, इट्स एवर चेंजिंग. इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंज. सो मैं कुछ साल पहले कैसे बात करती थी, उससे पहले कैसे करती थी, इट्स अ चेंज. ओके, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ, स्टैटिक नहीं है, इट्स कॉन्स्टेंटली इन अ स्टैटिक ऑफ स्टेट ऑफ चेंज. एज द एक्सपेक्टेशंस, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स सब बदलते रहते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं. गुस्से में मैं किसी और तरह से बात करती हूँ, अच्छे मूड में मैं किसी और तरह से, नॉर्मल मूड में, तो इट्स चेंजिंग विद माय मूड, फीलिंग्स. ओके, देन कंटिन्यूअस प्रोसेस है. क्या ऐसा होता है आज के दिन में मैं सिर्फ एक बार कम्युनिकेट करूंगी? नो, इट इज नॉट. I need to communicate with my parents constantly. I will communicate with my neighbors. I am constantly in touch with my students or maybe my peers, friends, college friends and so on. तो ये continuous process है. बस कब बंद करते हो? जब सो जाते हैं. ओके, वैसे तो तब भी thoughts brain में active रहते हैं. तो ये continuous process है, कभी अपने साथ और कभी किसी और के साथ. Then irreversible है. Oh, ये this is very important. हमें घर में बहुत बार बड़े लोग कहते हैं बेटा सोच के बोला करें, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे गलत वर्ड्स बोल सकते हैं जो दूसरे को पिंच करें. You cannot collect your words back. You just cannot. एक बार जो वर्ड मुंह से निकल गया वो निकल गया, वो आ गया हमारे सराउंडिंग्स में, वो लग गया किसी बंदे को जिसको बोला गया. हार्श वर्ड था तो दिल को लग गया, गुड वर्ड्स थे तो बहुत अच्छा लगा, प्लेजेंट. सो इट मीन्स तभी बड़े लोग बोलते हैं जो वर्ड्स बोल दिए गए वो हमारे आसपास हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं. सो क्यों? साउंड ट्रेवल करती है, इधर से उधर मूव कर रही है, तो अच्छी बातें बोलनी चाहिए, पॉजिटिव टॉक्स करने चाहिए. सो इट इज इरिवर्सिबल. यू जस्ट कैन नॉट कलेक्ट देम बैक.
देन इट्स इंटरैक्टिव। कम्युनिकेशन इज नेवर, अभी मैं जो बोल रही हूँ आपके साथ, इट्स नॉट कम्युनिकेशन, इट इज डिलीवरिंग लेक्चर सिंगल साइड। अगर हम आमने सामने बैठे होते और आपस में मैं डिबेट कर रहे होते, बात कर रहे होते, किसी डिस्कशन पर आते, तो वो क्या होता, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, देयर शुड बी एन इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल, ओके। सो इट इज कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। देन लेट्स मूव फर्दर, नीचे आ गए हम पैराग्राफ के। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी एक्सीडेंटल, हैविंग नो इंटेंट, कभी कभी हो जाता है। एक्सप्रेसिव, एक्सीडेंटली कैसे हो जाता है, कभी कभी बाय चांस बाहर डोर बेल हुई और मैं बाहर गई, कोई खड़ा था, सेल्समैन था, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, मैम वुड यू लाइक टू बाय दिस और दैट, अब ये इट हैपेंड, ओके। सो इट कुड बी समटाइम्स एक्सीडेंटल आल्सो। एक्सप्रेसिव, resulting from the emotional state of the person. Expressive कैसे, if you are crying or you are in a sad mood, so you are expressing those emotions. आपके टोन से, आपकी बात से पता चल जाएगा that you are not in a happy mood. In fact, let me tell you, अगर आप फोन पे भी किसी से बात करते हैं तो पता चलता है वो हैप्पी है या सैड है। हम फोन करते हैं, यार ये साउंडिंग डल, what is the problem, are you okay, is your health fine, is everything okay at home, so we get to know. So it is emotional state भी है। Then rhetorical, resulting from specific goal of communication, मतलब मैं आपके साथ किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, that is there is a goal behind that. Human communication occurs on the intrapersonal or interpersonal and public level. क्या क्या होते हैं, इसका भी फ्लो चार्ट नोट्स में बना लें। सबसे पहले we'll start with intrapersonal. When I say intrapersonal, it involves communicating with own self. अपने साथ जो मेरी डिबेट चल रही है, मैं ये काम करूं नहीं करूं, रात को खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, हैवी ना हो जाए, डाइजेस्ट नहीं होगा, ये करें कि ना, आज रात को टेस्ट पढ़ के सोऊं कि, ये सब मेरी अपने साथ कम्युनिकेशन चल रही है। और हमारी ये बहुत हद तक रात को सोने के बाद भी हमारी इंट्रापर्सनल चलती रहती है, बहुत सारों की तो इंटरपर्सनल भी चलती है घर वालों के सोने के बाद। It encompasses, I'm sure you understood, it encompasses such activities as thought process. Thought process, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, personal decision making, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, dilemma, focusing on self, should I eat more or should I not, what should I do when it comes to exercise, what should I do when it comes to studying or teaching or this that, अपने साथ रिकॉर्डिंग करूँ कि नहीं, आज नहीं कल कर दूंगी, ये सब अपने साथ चल रहा है। इंटरपर्सनल किसके साथ होगा, फिर इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल, तो घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इंक्लूड फेस टू फेस और मीडिएटेड कन्वर्सेशन भी हो सकती है। मीडिएटेड कन्वर्सेशन इंटरव्यूज क्या होती है, मीडिएटर बीच में किसी के साथ छोटे ग्रुप की डिस्कशंस हो सकती हैं। व्हाट इज पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक इज अ स्पीकर इज गिविंग मैसेज टू द ऑडियंस, जैसे मिस्टर मोदी इज एड्रेसिंग द होल गैदरिंग, public communication, he was giving not only message to China when he अभी recently when he went to borders और वहाँ से उन्होंने communicate किया, he was not only communicating with the soldiers, he was giving message to the China, Pakistan and even across the globe. So ये public communication होती है, speaker sending a message to an audience, it may be direct such as face to face, सामने सामने भी हो सकता है, और by speaker to an audience, और indirect भी हो सकता है, such a message relayed over radio and television, मन की बात जो आता है that is on the Facebook आ गया, टीवी पे आ गया, उसके थ्रू बता दिया गया। कंपोनेंट्स क्या है ह्यूमन कम्युनिकेशन के, इसके ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको अगर पेपर में आएगा बोलेंगे डिस्कस वेरियस टाइप्स और लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। कंपोनेंट्स है ना, टाइप्स भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स, पार्ट्स और लेवल्स, ये वर्ड्स हो सकते हैं अल्टरनेटिवली। व्हेन वी कम्युनिकेट सिलेक्टिवली, कैसे, thus that is from the wide range of repertory of words, actions and etc available to us, we choose that which we believe is best suited for the idea we wish to express। मतलब अंडरलाइन कर लो, सिलेक्टिवली होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप मन ही मन, जो भी, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं बैक ऑफ द माइंड आई एम फ्रेमिंग दी सेंटेंसेस, करेक्ट सेंटेंसेस एंड आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, ओके। ऐसे ही होता है, हम उस टॉपिक से रिलेटेड बैक ऑफ द माइंड ये सब चल रहा है, आपको दिख भी नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा,
and I don't even know that my brain is selecting these appropriate words and just telling the mouth to speak. So ये सिलेक्शन होती है कहाँ पर, जैसे मुझे अपनी क्लास को, जैसे मैं आपको कर रही हूँ इस टाइम पे बात, आई ट्राई टू ब्रिंग वेराइटी इन माय लैंग्वेज और इन माय वोकैबुलरी, राइट? लेकिन when I am at home, I don't think so I need to make an impression on my children or on my parents. So I may be very simple in my vocabulary or my conversation. It could be, sometimes it could be informal. वैसे most of the time it is informal, है ना? So that means I cannot have informal communication right now. So I am selecting. Selective होती है. If I am addressing a big gathering, okay, I am on a stage and people are sitting in front of me, I'll select those words accordingly. So communication is always selective. Okay, we encode. When I say encode, means take ideas, give them meaning and put them into message form. तो एनकोड कर लिया मैंने, पहले आइडिया, टेक आइडिया, क्या बोलना है, जैसे मैंने आपको ये बात ही समझानी है, मैंने आइडिया लिया, फिर मैंने उसका क्या क्या मीनिंग बनाया और फिर मैंने आपको उसको मैसेज के फॉर्म में बोल दिया. सेंड द आइडिया थ्रू अ चैनल, हो गया, चला गया. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ प्राइमरी सिग्नल सिस्टम बेस्ड ऑन आवर सेंसेस. ये कैसे आता है आइडिया? हमारे सेंसेस, जो हमारे सेंसेस हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. मेनली 5 सेंसेस कौन से? आईज से देखना, ईयर से सुनना, टंग से, टच से भी इंफॉर्मेशन आती है, नोज, स्मेल एंड टच फ्रॉम द स्किन. ये मुझे बताते हैं कि ये आइडिया है, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट. ओके, सो आई एम टेकिंग द आइडियाज और थ्रू माय सेंसेस. ऑलराइट, द मैसेज इज सेंट टू समवन हु रिसीव्स इट यूजिंग हर और हिज प्राइमरी सिग्नल सिस्टम. अब मैंने तुम्हें भेज दिया, अब तुम क्या करोगे? मैंने एनकोड किया, आप डिकोड करोगे. जो मैंने आपसे बोला, आपको क्या एज इट इज वहां समझ में आया? आपके भी सेंसेस इन्वॉल्व हैं. कैसे? आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो जो मैं बात समझा रही हूँ. क्लियर? सो यू आर यूजिंग योर ओन सेंसेस. अच्छा, अभी आप वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके बैठे हो, ओके, और आंखें खुली है लेकिन ध्यान कहाँ है? मेरी फ्रेंड है, मैं खाना खाना है या कुछ और. So will you be able to receive the same message which I am sending? Of course not. तभी टीचर्स क्लास में कहते हैं attentive रहें. Use all your senses to gain the information, right? Whatever I am encoding, you should absolute decode that message. All right? तभी उसे एक अच्छा communication माना जाता है. ओके, ट्रांसलेट किया आपने, मैंने जो आप तक पहुंचाया, आपने उसे अब अपने ब्रेन से समझना शुरू कर दिया, जो जो मैं बोल रही हूँ. एंड क्या किया? उसको आपने अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, मैंने फॉर्मेशन फॉर्म से भेजा, आप अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में गैदर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यू मे से दैट यू हर्ड अ बेल और एन ऑब्जेक्ट feels soft. These are examples of verbal communication which express how you understand the signals your senses have received. Okay, now you can also respond. जैसे स्कूल बेल बजती है ना, स्कूल बेल फर्स्ट पीरियड की एक रिंग होती है, सेकंड पीरियड में 2 रिंग्स होती हैं, कुछ स्कूल्स में एक लॉन्ग बेल मतलब चेंज ऑफ पीरियड, but there are many schools which give signal that now it is third period or maybe fourth by pressing the button buzzer that many times. Okay, now you also know and the person also knows that he is passing the information to all the teachers and the students. Ringing first bell means first period is started, and a long bell means it's recess time, and another long bell means it's the छुट्टी time. So what does this mean? जो वो वहां से पास कर रहे हैं with the touch, उसने अपने सिग्नल भेजा, हमें भी अपने सेंसेस से वही सिग्नल रिसीव हुआ, ऐसे समझ लीजिए. राइट? You can also respond at a non-verbal level. You touch a hot stove, क्या होगा? Your fingers pull away quickly. आपको मैसेज मिला, ये गरम है. उसने मैसेज दिया, मैं गरम हूँ, but you touched, और आपको फिर टच करके मैसेज मिल गया. And your eyes well up with tears, आंखों में पानी भी आ गया, गरम गरम हाथ लग गया. तो pulling away of fingers and welling up eyes with tears will communicate to an outlooker the pain suffered by you. आपका रोना, आपका ऐसे हाथ खींचना, सामने वाले ने देखा, what happened, are you okay? So this is the non-verbal communication maybe. The model given in figure 9.1 shows the process of communication involving different stages. देखिए नीचे एक सेंडर बनाया है हमने, उसने एक्चुअल वर्ड कुछ यूज किए, ठीक है राजे,
और फिर नॉन वर्बल क्लूज भी हो सकते हैं, फिर एक चैनल आया, इसको हम इस तरह से लेते हैं कि वो इट कुड बी एनीथिंग व्हिच द पर्सन इज, पहले अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, नॉइज भी हो सकता है, एक तरफ सेंडर है दूसरी तरफ रिसीवर है, दिस पर्सन इज सेंडिंग द एक्चुअल वर्ड्स एंड द रिसीवर इज गेटिंग, दिस पर्सन इज मे सेंड अ नॉन वर्बल क्लू, जैसे ममा का सिर्फ इतना आंखें बड़ा करके बच्चे को देखना, इट्स अ नॉन वर्बल क्लू एंड द रिसीवर गॉट इट, मॉम इज एंग्री, आई शुड नॉट डू दिस, okay, I should stop doing whatever I'm doing because she's unhappy by looking at this. So what does this mean? There could be a non-verbal message also. One will be the sender and the other one is going to be the receiver. Only then the communication is possible. Okay, let's get back to the paragraph. As you can see that in any communication process, the degree in which, underline करिए, degree बहुत important है. Communication is effectively depends on the communicator or communicators' mutual understanding of the signal or codes being used in transmitting a message and receiving. Girlfriend, boyfriends, when they talk, मुझे लगता है इतनी धीरे धीरे बच्चों को मैंने बात करते देखा है कि मुझे सुन भी नहीं रहा, and the other person is able to get everything. क्यों? Involvement of both sender and receiver. Okay, it's like पास में फुसफुस, two ladies are talking or two males are talking with each other. What are they doing? They have a common interest right now and they are talking about somebody, and the sender is also interested and the other person is also active listening. So communication कैसे डिग्री का होगा? Very high. क्लासरूम में क्या होता है? Teacher is speaking and many are not interested. Okay? लेकिन एक बात श्योर है, अगर आपको टीचर अच्छा लगता है तो many are interested also. So what happens? दोनों के बीच में डिग्री किस पर डिपेंड करेगी? रिलेशनशिप, किस तरह का टॉपिक है, there are plenty of things. उसमें शायद यहाँ इतनी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है. So they say अंडरस्टैंडिंग कैसी है कम्युनिकेटर्स की आपस में? दो फ्रेंड्स हो, बड़ा क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है. टीचर और स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी लेस. एक स्पीकर बोल रहा है, आपके स्कूल में स्पीकर आया कोई, आपके स्कूल ने तो बड़ी मुझसे बेचारों ने इनवाइट किया, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू हिम? वेरी लेस. ऊपर से अगर वो थोड़ा पकाऊ नेचर का है या जिसको आपकी लैंग्वेज में कहते हैं बहुत बोरिंग कर रहा है, बोरिंग टॉक है, सो व्हाट डू यू डू? बीच में क्लैप भी कर देते हैं कुछ बच्चे तो, नॉटी. सो व्हाट इज द सिग्नल दे आर गिविंग टू हिम? वी आर डिसइंटरेस्टेड इन योर टॉक. बट इफ the other person is a celebrity or he's speaking that particular topic which you are interested in, then you are very happy, then you listen, तब मजा आता है. So what does this mean? इन दोनों के बीच में रेपो कैसी सेट हो गई है उस पर डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी से मैंने तुम्हें भेजा और तुमने रिसीव किया. Alright, suppose you are about to take an examination and suddenly realize that you have not brought your pen to class. Imagine you ask your friend, do you have an extra pen that you can spare for me? She says yes and gives you the pen. You have just participated in an effective communication. जो आपने बोला उसको समझ में आया, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया. You, communicator A, encoded a message. You need a pen and used a channel for transmitting it, vocal codes. बोला, producing sound waves, उस तक पहुंच गई. To your friend, communicator B, your friend received the message using her sensory agent ear and decoded it. उसने समझा, उसको एक पेन चाहिए, और फिर आपके फ्रेंड ने फीडबैक दिया, yes, आपने भी appropriate words को सुना, indicated the message was successfully received and decoded. The communication would have been still effective if she had said sorry, I cannot because I am carrying only one pen. तो तभी ठीक हो जाता. Last paragraph. You may remember that the act of speech itself is not communication. Speech is only a biological act. Alright? Biological act है. The utterance of sound. क्यों कह रहे हैं biological? सुनिए. Utterance of sound. Sound produce हुई. Possibly the use of language. Communication is a broader aspect. It involves relationship among two or more people in which they attempt to share meaning, intent. वही उसकी summary यहाँ लिख दी, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है. Speaking will be recorded in the next video because this was a lengthy topic. So let's meet next time. Bye bye. Take care.